Barkimore, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. बारिकमोर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। Today's our lesson from God's Word is God keeps His promise. परमेश्वर के वचन से आज का विषय है परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। We read in the scripture all the passages we heard, the absolute certainty what God has said and He promised, He absolutely will fulfill it. वचन से आज पढ़े हुए सारे पाठों से जो हम सुने हैं, परमेश्वर द्वारा किए गए सभी वादों 100% निश्चित रूप से निस्संदेह वह पूरा करेगा। Take for example, the Lord Jesus told the apostles, wait in Jerusalem for the Holy Spirit to come upon you and baptize you, and you will become my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the whole world. उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। In the original language, that verse is, when the Holy Spirit comes upon you and give you the power, you cannot help but become my witnesses. मूल भाषा के अनुसार ऐसे लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह हुए बिना नहीं रह पाओगे। You see, God keeps His promise. परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। You read the book of Acts, you'll find that in every chapter, 30 years of the history of how God kept His promise. जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हर एक अध्याय में ये हम पाते हैं 29 वर्षों के इतिहास में परमेश्वर ने अपने वादों को कैसे पूरा किया है। And from the scripture we heard today about the life of Jacob. आज हमने वचन से याकूब के बारे में सुना। God made a promise before he was born that he was going to be blessed above and over anything else. उसके जन्म होने से पहले परमेश्वर ने वादा किया था कि वह सबसे अधिक आशीषमय होगा, But he could not believe it. परंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। 20 years of his life he wasted, and God waited until he come to the place where he recognized, I cannot do it in my own strength. God is the one who will fulfill his promise. अपने जीवन के 20 वर्ष उसने नष्ट कर दिए और परमेश्वर तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह ये समझ ना गया और कह पाया, मैं अपनी सामर्थ से ये नहीं कर सकता, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार करेगा। How much we worry about our children's future, our money and health and well-being and future. So many destroy their own life and the life of God by not trusting, depending on God's promise. हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कितनी चिंता करते हैं। हमारे धन, स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य के बारे में सोचकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, बिना परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन टूटने की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। And the thing is, God is almighty, but He cannot violate our choices, our will, and
our decisions. ऐसा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो हमारी पसंद, हमारा निर्णय, हमारी इच्छा को भंग नहीं कर सकता। See, no one can force you to lay down and sleep. देखिए, कोई भी आपको जबरदस्ती लिटाकर सुला नहीं सकता। But when you lay on the bed and have your pillow under your head, you go to sleep. लेकिन जब आप बिस्तर पर अपने सिर के नीचे तकिया रखकर लेट जाते हैं तो आप सो जाते हैं। And our responsibility is always in all things have this mental, emotional conviction. God will keep his promise. हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम मानसिक रूप से और भावुक होकर दृढ़ और निश्चित रहें कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा। What are some of those promises? वो सब वादे क्या है? Like in the life of Jacob, I will make you the head and not the tail. जैसे कि याकूब के जीवन में हुआ, मैं तुमको पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। I am the Lord that heals you. मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। Confess all your sins will be forgiven and forgotten. अपने पापों से क्षमा मांगे तो वो क्षमा करेगा और पापों को फिर स्मरण ना करेगा। Give your tithes and offering faithfully, and I will open the windows of heaven and bless you more than you can imagine. दान और दशवांश को विश्वास योग्यता से दें और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा Tell करूंगा। others about me, thus you will become fishers of men. मेरे बारे में दूसरों से कहें, इस तरह तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाओगे। My God will provide all your material needs according to his great riches. Trust him. परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Don't worry about tomorrow, what you will eat, what you will drink, what you will wear. God cares about you. कल की चिंता मत करो कि आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आप क्या पहनोगे। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। Make a choice to live for one day at a time. आप दिन प्रतिदिन जीने के लिए कोशिश करें। And God said, I will take care of everything. परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कामों को संभाल लूंगा। That never means there will not be pain and suffering and sorrows and your martyrdom. इसका अर्थ ये नहीं है कि दर्द, परेशानी, दुख नहीं होगा और शहीद नहीं होना पड़ेगा। But God give the grace and strength to be victorious in and through our life always. परंतु परमेश्वर हमें अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करेगा ताकि इन सभी परिस्थितियों के बीच में हम अपने जीवन में धन्य और विजयी हो सकें। That is the reason why the authentic Orthodox Church from the first century, the believers, they never said, oh God, save me from this problem, that problem, this and that. They always said, Lord, your name may be glorified. Give me the faith and grace not to deny you, but trust in you. इसलिए पहली शताब्दी के प्रारंभिक सच्ची ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के विश्वासी ये नहीं कहते थे कि प्रभु मुझे इस समस्या से बचाएं या उस समस्या से बचाएं। उन्होंने ये कहा, आपके नाम की महिमा हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मुझे विश्वास और अनुग्रह प्रदान करें कि आपका तिरस्कार ना करूं। That's what Jesus told Peter, the apostle. I prayed not that you will not have difficulties, but your faith in God will not fail. यही यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यह नहीं कि तुम कठिनाइयों में ना पड़ो, परंतु परमेश्वर में तुम्हारा
विश्वास कम ना हो। Why is this? ऐसा क्यों? God, the Almighty Creator of the universe, the endless numbers of galaxies, this God is our Father, our Shepherd, our Keeper. We can trust Him. सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे संसार और अनगिनत आकाश गंगाओं के सृष्टि करता है। ये परमेश्वर हमारे पिता है, हमारा चरवाहा, हमारी देखभाल करने वाला है। हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।